A very warm welcome to my channel Ritu Garg Maths Classes. Today in this video we are going to take up the topic of number systems for class 9th. This is the very first chapter of the book, and in this video we will be taking the top 5 most important questions of this chapter. Actually maths is such a subject in which you need a lot of practice. Practice and you are done. बट फिर भी आपको वो 5 से 7 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो ना कहीं छूट जाएं, वो बहुत ज़रूरी आने चाहिए. सो दैट वी आर गोइंग टू कवर अप इन टुडेज वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज सिंप्लीफाई फोर्थ रूट ऑफ 81. You can see it is not 4 into root 81, it is fourth root of 81. जो 4 है वो 81 की लैप में है. So this is known as fourth root of 81 minus 8 into 3 कहाँ है लैप में. So it is cube root of 216 plus 15 into fifth root of 32 plus square root of 225. In this question I will tell you how to solve square root, cube root, fourth root, fifth root, every root. So let's start. When we write down the solution, first of all we have to note down the question very carefully. This dot stands for the product, that is the multiplication. So सबसे पहले तो आपने सारा का सारा जो स्टेटमेंट है वो बड़े अच्छे से ट्रांसफर कर लेना है क्वेश्चन पेपर से अपनी शीट के ऊपर. एंड देन फोर्थ रूट ऑफ 81 मीन्स 81 रेज टू पावर 1/4 माइनस 8 एज सच. 216 का क्यूब रूट है, दैट इज होल रेज टू पावर 1/3 प्लस 15 इंटू 32 रेज टू पावर 1/5. फिफ्थ रूट का मतलब क्या है 1/5 पावर. एंड इसके लैब में आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, जिसकी लैब में कुछ नहीं है सिंपल रूट है, इट मींस इट्स अ स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट का मतलब उसकी पावर जो है दैट इज 1/2. नाउ आई नीड अ नंबर इन विच आई कैन एक्सप्रेस 81 एज द फोर्थ पावर. क्योंकि यहाँ 1/4 पावर है, सो आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर इट and you can do the prime factorization. आप prime factorization से वो नंबर ढूंढ सकते हो, that will be 3, because when you take 3 raised to power 4, जब आप 3 को 3 से 4 बार मल्टीप्लाई करोगे 3 raised to power 4, that will become 81. How? 3 into 3 9 into 3 27 into 3 81. So 3 raised to power 4 is 81. You can do mentally also. नहीं होता mentally तो don't worry, रफ वर्क में जाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन करो एंड ऐसा फैक्टर जो 4 बार रिपीट कर रहा है that will be the number over here. Whole raised to power 1/4 as such. Similarly 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और ऐसा नंबर उठाना है जो 3 बार रिपीट हो रहा हो. Why 3 times? Because the whole raised to power is 1/3. So you have to take such a number जो 3 बार रिपीट हो रहा हो. So 6 क्यूब. अगर आप 6 का क्यूब सॉल्व करते हो तो 6 into 6 36 into 6 is 216 प्लस 15 into 32 को लिखना है अब मुझे किसी नंबर की फिफ्थ पावर में. फिफ्थ पावर क्यों लिखनी है? बिकॉज होल रेज टू पावर 1/5 है. सो प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखा 2 into 2 4 2 are 8 2 are 16 2 are 32. So when you solve 2 raised to power 5 it is 32 and whole raised to power 1/5. यहाँ मुझे ऐसा नंबर चाहिए 225 के लिए जो स्क्वायर में आए. सो 15 का स्क्वायर जब आप करोगे दैट विल बी 225. दिस मीन्स टू से 3 raised to power 4 into 1/4 because a raised to power m into n is equal to a raised to power mn. ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, ये आपने किए हुए ऑलरेडी लोअर क्लासेस में. 6 raised to power 3 into 1/3. Similarly here 2 raised to power 5 into 1/5 plus 15 raised to power 2 into 1/2. So you can see these powers get cancelled and what we are left with 3 raised to power 1 is 3 minus 8 into 6 raised to power 1. So 8 into 6 is 48 plus 15 into 2 30 plus 15 raised to power 1 that is 15. कुछ नंबर्स पॉजिटिव में है कुछ नेगेटिव में है. पहले पॉजिटिव वाले ऐड कर लेते हैं. 30 प्लस 15 45 प्लस 3 48. आगे क्या पड़ा है -48. So it cancels out and the answer for such a big expression is 0. Such questions are very important और ये आपको एक अच्छा सा
एक सारा सॉल्विंग मेथड देते हैं, इसमें आपने फोर्थ रूट, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, स्क्वायर रूट सब सीख लिया हाउ टू सॉल्व इट. नाउ वी विल बी टेकिंग अप नेक्स्ट क्वेश्चन. Now we have taken up the second question, rationalize the denominator. This is a very important type. First question में आपने सीख लिया कि जैसे डिफरेंट रूट्स को सॉल्व करना है. सेकंड क्वेश्चन में आपको देखो आपके पास एक ऐसा एक रैशनल नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर है. सो वी हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. उसका डिनोमिनेटर कभी भी we never leave surds in the denominator. Surds means irrational numbers. आपने कभी नहीं छोड़ने, उसको रैशनलाइज करना है, मतलब उसको रैशनल बनाना है. अब कैसे बनाना है, लेट्स सी. Let's take the solution. First of all, note down the given very carefully. Now this thing can be written as, पूरा का पूरा नंबर आपके पास वही है, लेकिन इसको मैंने रैशनलाइज करना है. मीन्स आई हैव टू मल्टीप्लाई and divide by a number which is opposite in sign of the denominator, keeping the number same. मतलब √5 और √3 ये दो नंबर्स आ रहे हैं डिनोमिनेटर में, आपने यही नंबर्स लेने हैं, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव था तो here you will be taking plus, which is equal to, look at the denominator, it is of the form a minus b into a plus b. जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी बन रही है a minus b into a plus b, which is equal to a square minus b square. So it is a square minus b square, because in place of a we are having √5, तो a square हो गया √5 square minus b square, in place of b we are having √3, so it is √3 square. अब न्यूमरेटर में ये सारी टर्म्स ने इधर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन होना है. वन बाय वन वी विल बी मल्टीप्लाइंग. फर्स्ट ऑफ ऑल 3√5 विल गेट मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म. 3√5 इंटू √5 क्या बना, 3 इंटू √5 दैट इज 5. कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट में है और वो सेम है, पेयर हो गया, तो उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो 5 स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर रूट विल गेट कैंसिल्स. सो √5 बन गया 5 इंटू 3 दैट इज 15. अब आपके पास यही नंबर सेकंड नंबर से मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, सो इट इज अ प्लस. आपको सिंबल देखना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव. 3√5 इंटू √3. देखो इसमें क्या था, आपके पास रूट जो है वो डिफरेंट आ रहा है. 3 रैशनल नंबर मैंने ऐसे ही लिखा, √5 इंटू √3 सेम नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं हटेगा. √5 इंटू √3 दैट बिकम्स √15 प्लस. अब इस नंबर की टर्न आ गई, दिस इंटू दिस, √3 इंटू √5 फिर से सेम नहीं है, सो इट विल बी √3 इंटू √5 दैट इज √15 प्लस 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 इज प्लस √3 इंटू √3, फिर से स्क्वायर रूट में नंबर सेम आ गया, स्क्वायर रूट गेट्स कैंसल्ड. ऐड द रैशनल नंबर्स, रैशनल को रैशनल से ऐड करो, 15 प्लस 3 18, और यहाँ पे आपको इरैशनल ऐड करने हैं. ये है 3 टाइम्स √15 और ये है 1 टाइम √15. √15 कॉमन है, 3 टाइम्स प्लस 1 टाइम, so it is 4 टाइम्स √15 डिवाइडेड बाय √5 स्क्वायर. स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे कैंसिल हो गया, आपके पास क्या रह गया 5 माइनस √3 स्क्वायर. स्क्वायर रूट का स्क्वायर किया कैंसिल, आपके पास नंबर रह गया 3. सो दैट इज, नाउ यू कैन सी आपके पास जो ऊपर दो नंबर्स हैं उनमें से 2 कॉमन आ रहा है. आपको रैशनल पार्ट जो है उसमें से 2 कॉमन मिल रहा है. 18 में से 2 कॉमन लिया 9 प्लस यहाँ पे रैशनल पार्ट में से लेना है आपने सिर्फ कॉमन, तो 4 था उसमें से आपने 2 ले लिया, बाकी कितना बचा 2 √15 एज सच डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 इज 2. यू कैन सी दिस 2 आल्सो कैंसल्स. सो आपके पास बड़ा क्लियर सा आंसर आ गया, 9 प्लस 2 टाइम्स √15. सो दैट इज द नंबर which is having no denominator in irrational, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 which is a rational. तो आपने क्या करना था, rationalize the denominator, मतलब ये जो पार्ट था इसको आपने खत्म करना था. इसका जो डिनोमिनेटर था वो था irrational, वो खत्म हो गया, so that is done. न्यूमरेटर में अगर आपके पास irrational बचता भी है no problems, लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं बचना चाहिए. So now we'll take up next question. Let's start with third question. Find the value of a if 3 minus √5 divided by 3 plus 2 √5 is equal to a √5 minus 19 by 11. It means 2 numbers have been given to us as equal and आपको ये जो a है इसकी वैल्यू निकालनी है. This is a very important type, directly comes in 4 marks category. Let's start with the solution.
आपको वहीं से स्टार्ट करना है जो इक्वेशन गिवन है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन this equation is given to us. We cannot compare these two numbers क्योंकि ये नंबर डिफरेंट फॉर्म में है और ये डिफरेंट फॉर्म में है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. यू कैन सी इस तरफ कोई भी आपके पास डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं है. सो इस तरफ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर विच वी हैव जस्ट लर्नड इन क्वेश्चन नंबर 2. सो आई हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस होल नंबर बाय. ये नंबर्स आपके पास डिनोमिनेटर वाले सेम रहेंगे लेकिन जो साइन रहेगा वो ऑपोजिट रहेगा. यहाँ प्लस है तो यू हैव टू टेक माइनस. आई एम रिपीटिंग द होल स्टेप ऑफ रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. यू कैन लर्न इट अगेन. नाउ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. डिनोमिनेटर में आपके पास हमेशा आइडेंटिटी तैयार हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बिकम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. In place of a we have 3, in place of b we have 2 times root 5 पूरा. और न्यूमरेटर में क्या है, एक एक टर्म में जाके मल्टीप्लिकेशन होनी है. सबसे पहले 3 की टर्म, 3 3s are 9, फिर ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 3 इंटू 2 रूट 5. रैशनल नंबर को रैशनल से मल्टीप्लाई करो. इसका रैशनल पार्ट 3, इसका रैशनल पार्ट 2. 3 2s are 6, साथ में क्या है रूट 5. अब इसकी टर्न है रूट 5 की लेकिन इसके साथ नेगेटिव है. सो ध्यान रखना है माइनस रूट 5 इंटू 3. It will be written as minus 3 times root 5. पहले हमेशा रैशनल पार्ट लिखोगे फिर इरैशनल लिखोगे. माइनस माइनस इज प्लस रूट 5 इंटू 2 रूट 5. 2 एज सच रूट 5 सेम नंबर आ गया, स्क्वायर रूट हट गया. रूट 5 कितना बना 5 इंटू 2 भी है दैट इज 10. सो बड़े ध्यान से आपने यहाँ पर कर लेना है. आप चाहो तो रफ वर्क सॉल्व कर सकते हो. रफ वर्क में आराम से सॉल्व करके फिर यहाँ वैल्यूज ट्रांसफर कर सकते हो. नाउ एडिंग द रैशनल्स. 10 प्लस 9 19. और ये देखो ये आपके पास सेम टर्म है रूट 5 में, तो इट मीन्स रूट 5 इज कॉमन. माइनस 6 टाइम्स है रूट 5, यहाँ माइनस 3 टाइम्स रूट 5, तो ये बन गया माइनस 9 टाइम्स रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 2 रूट 5 होल स्क्वायर मीन्स 2 रूट 5 इंटू 2 रूट 5. अगर मैं आपको ये रफ वर्क में सॉल्व करके दिखाऊं तो ये बना 2 रूट 5 इंटू 2 रूट 5. दैट इज 2 2s are 4 into root 5 is 5, that becomes 20. So this is how you can solve for the rough work. So it becomes 20 is equal to, ये साइड आपको as such ही लिखते जाना है, इसमें कोई changes नहीं, कोई solving नहीं. Now simplifying it further, let's see how we can compare. जब ये बिल्कुल सेम फॉर्म के आ जाएंगे तब हम कंपेयर करेंगे इनको. सो आपको उस फॉर्म में लेके आना है पहले नंबर को. This implies 19 minus 9 root 5 divided by 9 minus 20 is minus 11. और यहाँ आपने ये नंबर एज सच ही लिख के रखा हुआ है. नाउ आई डोंट नीड दिस स्टेप सो आई एम रबिंग इट ऑफ. नाउ स्प्लिटिंग फर्स्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर माइनस या प्लस जो भी है सेकेंड टर्म अपॉन डिनोमिनेटर. अब ध्यान ये रखना है आपको कि यहाँ भी नेगेटिव है यहाँ भी नेगेटिव है, तो अगले स्टेप में इसको हम करेक्ट करेंगे. आप चाहो तो इसी स्टेप में भी करेक्ट कर सकते हो. हाउ इट विल बी, कभी भी डिनोमिनेटर में आप नेगेटिव नहीं लिखते हो, यू जस्ट टेक इट इन द अपर पार्ट. सो इट बिकम्स माइनस 19/11 और यहाँ क्या बन गया माइनस माइनस प्लस. अब नंबर्स तो ऑलमोस्ट सेम फॉर्म में आ गए बट अभी भी एक चीज और बाकी है. यहाँ इररेशनल वाला नंबर पहले लिखा गया है, यहाँ इररेशनल वाला नंबर बाद में है. सो वी हैव टू अरेंज इट. इररेशनल मतलब जिसमें रूट वाली वैल्यू बनी. ये नंबर पहले लिखोगे, पॉजिटिव था पहले लिख दिया मैंने, और ये माइनस 19/11. बिकॉज जब 4 मार्क्स का क्वेश्चन चल रहा है यू मस्ट राइट डाउन ईच एंड एवरी स्टेप वेरी क्लियरली. नाउ यू कंपेयर, बहुत इजीली दिख रहा है. दिस होल पार्ट इज इक्वल टू इक्वल. इट मीन्स 9 root 5/11 is equal to a root 5. क्योंकि ये पार्ट तो इक्वल है ही है तो फर्स्ट पार्ट भी इक्वल होना चाहिए. रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो गया. आपके पास a की वैल्यू कितनी बची 9/11. सो दैट इज योर आंसर फॉर दिस 4 मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें आपको a सॉल्व करना है, कई क्वेश्चंस में b सॉल्व करना है, कईयों में a एंड b सॉल्व करना है. द प्रोसेस विल बी द सेम. नाउ वी टेक अप अनदर क्वेश्चन. Question number 4.
If a is equal to 3 plus root 5 by 2, find a square plus 1 by a square. Such questions you will not find in NCERT. These are somewhat higher order thinking skills questions. That is HOTS questions, which are very important from examination point of view. So let's start. सबसे पहले आपको a given है 3 plus root 5 by 2. Just take its reciprocal because आपको इसका reciprocal की जरूरत पड़ेगी. So I am taking the reciprocal. Reciprocal लिया, ये बन गया. बट जैसे आप रेसिप्रोकल ले रहे हो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया, इरेशनल नंबर. इट मींस वी हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. कभी भी आपने नीचे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर्स नहीं छोड़ने. सो वी हैव टू रैशनलाइज. ऊपर क्या बना, 2 3 6 प्लस माइनस इज माइनस 2 रूट 5. और डिनोमिनेटर में अब आप कई क्वेश्चंस कर चुके हो. रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यू नो a plus b into a minus b will give you a square minus b square. So that will be 3 square minus root 5 square. That is 1 by a is equal to 6 minus 2 root 5 divided by 3 3s are 9 minus 5 that is 4. आपके पास सिंप्लीफाई करके क्या बचा, 9 minus 5 is equal to 4. और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो यू कैन सी यहाँ से आपके पास न्यूमरेटर में से 2 कॉमन आ रहा है. जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो दैट विल बी बेटर फॉर यू बिकॉज उतनी छोटी टर्म्स के साथ आपको सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. सो इसके रैशनल में से 2 कॉमन लिया एंड वो नीचे डिनोमिनेटर से थोड़ा सा डिविजन में कैंसिल हो गया. ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, a और 1 by a. ये रेडी हो गए. एडिंग first and second equations. Why add? Because we want a square plus 1 by a square. अगर आपको कुछ और चाहिए तो उस अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है. So I am going to add. LHS will get added into LHS and RHS will get added into RHS. जब इन दो नंबर्स को ऐड करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास 3 plus root 5 by 2 added with 3 minus root 5 by 2. You can see LHS LHS में ऐड हो गई, RHS RHS में ऐड हो गई. So now simplifying it further. Let's add them up. How to add? Let's see. A plus 1 by a तो आपके पास ऐसे ही रहेगा, इसको तो अभी आपने कोई चेंज नहीं करना. RHS में when you add it's a common LCM 2. न्यूमरेटर बन गया 3 plus root 5 plus 3 minus root 5. root 5 cancels क्योंकि ऑपोजिट से इनके प्लस माइनस कैंसिल हो गया. 3 plus 3 6 divided by 2 is 3. सो आपके पास एक सिंपल सा नंबर बच गया. जब आप इनको ऐड कर रहे हो, देखने में नंबर्स बहुत बड़े थे बट आफ्टर एडिंग इट इज सिंपली a plus 1 by a is equal to 3. अब हमें पहुंचना है स्क्वायर तक. स्क्वायर इन बोथ साइड्स. दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस. अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन चलता चला जाएगा. व्हेन यू डू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इट मींस होल स्क्वायर. कभी भी आपने डायरेक्ट नहीं करना, आपने होल स्क्वायर करना है. अब यहाँ पे ध्यान से देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला चल पड़ा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. b की जगह पे क्या चल रहा है 1 by a मींस a स्क्वायर प्लस 1 by a स्क्वायर प्लस 2 into a into 1 by a is equal to 3 स्क्वायर इज 9. ये a से a कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही है, नीचे आ गया a स्क्वायर. इधर प्लस 2 बचा है, 2 into 1 2 बचा है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 9 minus 2 is equal to 7. So the value of a square plus 1 by a square is coming out to be 7, which is quite simple. आपके पास नंबर ऐसा है, देख के नहीं लग रहा सिंपल वैल्यू आएगी बट इसके आंसर्स जनरली आपके पास बड़े सिंपल आएंगे. Now let's take up the final question. Let's take up a final question. Question number 5. Express 0.47 bar in the form p by q where p and q are integers and q is non-zero. This is such a question जिसके बगैर पेपर सेट नहीं होता. ऐसी फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व इट. सबसे पहले आपको इस नंबर को किसी भी वेरिएबल के इक्वल अकॉर्डिंगली आप सपोज कर सकते हो x, y, t, whatever you like. I have taken let x is equal to 0.47 bar. When we say 47 bar, it means
4 तो रिपीट नहीं कर रहा, 7 के ऊपर बार है, इट मीन्स जब आप डिविजन कर रहे थे तो 7 रिपीट कर रहा था. इट कुड बी रिटन एज 0.4 एज सच. 7 बार है ना, 7 7 7 ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन आएगी जब आप जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हो, तभी वो 7 बार बना. ठीक है, फर्स्ट. अब कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है? 7 एक ही डिजिट है. अगर एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 10. अगर 2 डिजिट्स हैं, सेट है, डिजिट्स का पेयर है, तो मल्टीप्लाई बाय 100. अगर 3 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड सो ऑन. यहाँ तो एक ही डिजिट है, सिंगल डिजिट है, रिपीट कर रहा है बारी बारी. सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10. बोथ साइड्स इसलिए करते हैं, मैथ्स में जो भी आपको करना है वो आपको बैलेंस करना है. वी कैन नॉट मल्टीप्लाई ऑन वन साइड. सो ध्यान रखना आपको LHS को भी मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ 1 इक्वेशन 1 बाय 10. सो 10x इज इक्वल टू, जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, एक प्लेस शिफ्ट होगा क्योंकि आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो. अगर किसी क्वेश्चन में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो डेसिमल 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा अकॉर्डिंगली. नाउ गिव इट इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 गिव्स, मीन्स आपको सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी है. LHS में से LHS माइनस करोगे, RHS में से RHS माइनस करोगे. 10x माइनस x 9x इज इक्वल टू. अब इधर कैसे सब्ट्रैक्शन करनी है? यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अ रफ वर्क. नंबर क्या है? 4.777 एंड सो ऑन. इसमें से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है 0.477 एंड सो ऑन. अब 3 बार 7 लिखो या 2 बार लिखो या 4 बार लिखो, इट विल कीप ऑन रिपीटिंग. ध्यान से देखो जरा. 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया 0, फिर 0. 7 में से 4 गया 3, 4 में से 0 गया 4. इट मीन्स आपके पास अगर लास्ट में जीरोस रिपीट हो भी रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता. नंबर क्या बचा? 4.3. 4.3 इधर है और इधर 9 जो है मल्टीप्लिकेशन है, दैट विल गो इनटू डिवीजन. बट ये तो कोई नंबर नहीं हुआ. सो इट मीन्स मुझे 43 बना के इसका डेसिमल रिमूव कर देना चाहिए. जब आप डेसिमल रिमूव करोगे तो अपॉन 10 आएगा. 9 इंटू 10 इज 90. आप x ये नंबर लेके चले थे जिसकी आपको रैशनल फॉर्म मिली. देखो आपको रैशनल फॉर्म बोला गया था, p अपॉन q इट्स अ रैशनल फॉर्म. तो रैशनल फॉर्म बोला गया था बनाने को. रैशनल फॉर्म क्या बन गई? 43/90. आई होप ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे. सो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. Don't forget to subscribe to my channel. Thanks for watching.